If there is some ulcer in oral cavity, mouth cavity, it can be the symptom of cancer. Oral cavity means tongue or buccal mucosa. Lump in any part of the body. Sometimes even not your lung, because lung you can see from outside, but if the internal organs are involved, we cannot make out from outside. Then we have to depend on the symptoms. That means if there is a cough, it may be related to the lung cancer or throat cancer, or pharyngeal cancer or laryngeal cancer. Bleeding in urine, it may be related to bladder cancer. If there is a bleeding, like excessive bleeding in menstrual cycle or after the menopause, it can be cervical cancer or uterine cancer. And not only a problem, but in terms of that it is curable, and as early as possible, if we get to know, we have a lot of facilities available and we can go and get it screen, test and take necessary action. Thank you, ma'am. I request Dr. Tiwari to come and make us aware about few other types of cancer which is very prevalent and if detected early can be cured. Over to you, sir. There are no questions. So how many of you all has seen someone who removes a packet from the pocket, pours something on the hand, then clears it, removes another packet, removes something which is slimy, push it there, then mixes it properly, and then it's taken and kept in the mouth. Okay? So this is what tobacco is. The primary and the main agent which is required if somebody wants to get oral cancer, we would suggest them to have tobacco. Okay, so there are many types. So that is peer pressure. So this is that age that you are in when one of your friend who looks cool, who has a vape or who smokes, is going to ask you, Lena, kuch nahi farak padta. And then you start enjoying. That is when the addiction starts. So according to the chronology, if you see, the most addictive substance is sugar. Second most addictive substance is nicotine. So once you get addicted to nicotine, it is very difficult to come out. There are many things that can be done to come out, but why go in where you require a professional help? Next is, people say it helps in relief. So you might have heard your senior some say कि अरे exam का tension बहुत था तो I just had a smoke, so now my head is working properly and now I'll be able to study. But that is absolutely wrong. Next is, it gives you the happy kick. That is why we start smoking, right? That happy kick. So slowly that happy kick becomes a habit and we get addicted towards it. There are many people who you might have seen, they say कि if I don't. नवभारत फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट ने जो ये कैंप लगाया है, इससे काफ़ी बच्चों को जानकारी मिली है। सर्वाइकल कैंसर जिस तरीके से बढ़ रहा है और नवभारत फाउंडेशन इसके लिए इतना अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएशंस करके इस टाइप के कैंप लगा रहा है, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जय हिंद कॉलेज में 50% से ज़्यादा बच्चे ऑल अक्रॉस इंडिया से आते हैं और इस कैंप की वजह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के ही बच्चे नहीं बल्कि ऑल अक्रॉस इंडिया के बच्चों को काफ़ी इस बारे में जानकारी मिल रही है। इस तरीके के कैंप से अवेयरनेस होता है, लोगों को पहले पता चलता है कि कैसे हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या हम उन चीज़ों के बारे में प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और इस टाइप की जो इनिशिएटिव्स है जो नवभारत फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट ले रहा है, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है सभी लोगों के बारे में। बिकॉज कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को डिनायल फेज़ में चले जाते हैं कि कैंसर है, एक डर बैठ जाता है। लेकिन अगर अवेयरनेस हो जाती है तो वो डर निकल जाता है और अगर डर निकल गया तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके के एसोसिएशन जो नवभारत फाउंडेशन है आगे भी करना चाहेंगे, क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट करने से हम देश का बहुत बड़ा फ़ायदा कर रहे हैं और एक हेल्थ जो फैक्टर होता है और इकोनॉमी पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो इस तरीके के इम्पैक्ट, इस तरीके के इनिशिएटिव्स सबको करने चाहिए और नवभारत फाउंडेशन की ये जो कोशिश है सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने की, ये बहुत अच्छी कोशिश है और ऐसी कोशिश उन्हें करती रहनी चाहिए और जय हिंद उनके साथ है इस तरीके की कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद कॉलेजमध्ये
आमच्याकडे जी मुलं येतात ते 18 ते 20 वर्षाचे असतात आणि त्याच्यामुळे आम्ही हे आमच्या कॉलेजचं मिशन आहे की वी डेव्हलप अ गुड सिटिझन. ज्यावेळेला आम्ही म्हणतो गुड सिटिझन तर त्यांना आम्हाला हे सगळं काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग द्यायचं असतं. धन्यवाद देतो की नवभारत फाउंडेशन हे कार्यक्रम करते आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही हा कार्यक्रम करतो आहे आणि असे कार्यक्रम होत राहावे आणि याच्यासाठी आम्ही बांधील आहोत की आम्ही असे कार्यक्रम करत राहू. कारण आपल्या भारतामध्येच असं यंग क्राऊड आहे की जर त्यांनाच आपण या सगळ्या नशामुक्ती वगैरे ह्याच्यापासून आपण मुक्त केलं तर एक हेल्दी भारत असं होईल. हा असा आमचा प्रयत्न आहे आणि मी धन्यवाद देऊ इच्छितो की नवभारत फाउंडेशन हे छान कार्य करते आणि त्यांच्याबरोबर सतत कार्यरत राहू अशी माझी इच्छा आहे आणि ऑफकोर्स ते पण करतीलच या कार्यामध्ये. तर त्यांना पण खूप खूप धन्यवाद की ह्या आज जी गरज आहे ती करतायत ते त्याच्याबद्दल धन्यवाद. I would really like to thank Navbharat Foundation for social impact for creating such good awareness amongst the youngsters. क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो कॉलेज के बच्चे ही हैं जो शुरुआत करते हैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू, और यही वो एज है जिसमें इनको इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस एज ग्रुप के बच्चों को जो 17 to 21 है, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, इन सब में अवेयरनेस फैलाएं कि तंबाकू, बीड़ी, पान, मावा, इवन सिगरेट, इवन वेप जो आज के समय में लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका कितना ख़राब इम्पैक्ट हो सकता है उनकी हेल्थ पे और सोसाइटी पे. क्योंकि ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, गले का कैंसर, ये कैंसर का मुख्य कारण है तंबाकू. तो अगर हम तंबाकू से ही इन बच्चों को दूर रखें तो हम इन कैंसर से इन सब लोगों को दूर रख सकते हैं. सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए ये पता करना है, क्योंकि कैंसर रातों रात नहीं होता. कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ साइन होते हैं, कुछ सिम्टम होते हैं जो इन सब लोगों में दिख सकते हैं. तो हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाएं कि किस तरह से हम अर्ली स्टेज पे इन सब कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, फाउंड आउट कर सकते हैं और तुरंत उनका इलाज कर सकते हैं, ताकि हम इस सोसाइटी को एटलीस्ट ओरल कैंसर मुक्त बना सकें और तंबाकू मुक्त बना सकें. सबसे पहले तो मैं नवभारत फाउंडेशन को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है. और जय हिंद कॉलेज के साथ में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी पहल है. मैं कहना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो HPV रिलेटेड एक तरह का क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है जो बाद में कैंसर बन सकता है. और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आजकल प्रिवेंशन के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए एक तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अवेलेबल है और ये अगर बहुत यंग एज में 9 to 15 ईयर्स या फिर अप टू 26 ईयर्स तक अगर ये वैक्सीन दिया जाता है तो बहुत हद तक हम 80 to 90% जो है वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर को अगर प्रिवेंट करना है तो एक तो सेफ़ सेक्सुअल एक्टिविटी फॉलो करें, देन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन डेफिनेटली सारे यंग फीमेल्स को लेना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है और अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो इसको जो है ऑन्कोलॉजिस्ट के अंडर में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज. थँक्यू. एक स्टुडंट म्हणून हा त्या कॅम्पसाठी आणि ह्या सेशनसाठी मी खूप एक्सायटेड आहे, बिकॉज आमच्या कॉलेजमध्ये खूप असे सेशन्स असतात जे विषयी अवेअरनेस साठी आम्ही अरेंज करतो. आम्ही NSS व्हॉलंटियर्स आहोत आणि आम्ही असे खूप सारे सेशन्स आधी पण केलेले आहेत. पर्टिक्युलरली ह्या सेशनबद्दल मला असं वाटतं की आम्ही जेव्हा पण गुगलवर सर्च करतो किंवा कॅन्सरबद्दल किंवा कॅन्सर प्रिव्हेंशनसाठी काही पण सर्च करतो तेव्हा ती माहिती आम्हाला गुगलवरून मिळते. पण आज मी या सेशन बद्दल एक्सायटेड आहे कारण मला एक 1-on-1 इंटरॅक्शन मिळणार आहे एक्सपर्ट्सपासून, त्या पॅनलपासून. सो त्यांना मी खूप काही प्रश्न माझ्या मनात ठेवलेले आहेत की मी जाऊन विचारणार आहे. सो आय एम एक्सायटेड फॉर इट अँड थँक्स टू नवभारत फाउंडेशन फॉर ऑर्गनायझिंग दिस सेमिनार इन आवर कॉलेज. I'm feeling very happy that our college and the organization Navbharat Foundation for Social Impact is doing such organized things because oral cancer is one of the मतलब अभी बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे एंड ऑल. सो ये सेशंस होने बहुत ज़रूरी है एंड इन ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड दैट आवर स्टूडेंट्स विल गेट इंटरेक्टेड विद सच टॉपिक्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू.